Okay, so in this access point, see, most of the access points will have common features, but some access point will have some add-on additional features. Some access point has got little less features. Okay, depending upon the product model, depending upon the version of that product. Okay, so this is eyeball button access point. It is 150 Mbps extreme wireless N router. All right. Now, beauty of this access point is why I chose this access point and why I bought this, because and this is quite old. I bought it 3 4 year back, 3 4 year back, I believe. Okay, and working excellently 24/7 on. Okay, without any problem, and it has most of the professional features. Okay, so let us start from the beginning now. सबसे पहली चीज ये है कि इसमें ये जो जिस विंडो पर आप हो, यहाँ पर जो विंडो है आपका, उसके हर एक चीज का डेफिनेशंस और उसका मीनिंग यहाँ पर आपको मिलेगा, हेल्प में मिलेगा. If somebody do not know anything and can read it properly, can get this options, can learn this firewall without any problem. Okay, this is so. Okay, so now let's say very first screen where you have a status. That means it tells you your your access point firewall version. What is a version? That is a 4.1839 built-in version of eyeball. Hardware version is eyeball, and this is the actual model. Okay, now LAN settings. So what is the MAC address of LAN interface where your local network is connected? IP address is this. Okay, subnet mask is this. Wireless, let's go to the wireless settings. So wireless radio is enabled. Its an SSID is Skynet. Okay, whatever name you want to give, you can give. Okay, I have given this name. This is all your choice, what name you want to give. Okay, so this SSID stand for service set identifier. SSID service set identifier. Okay, and in some access point you will see BSSID, basic service set identifier. All right, what happened? Okay, all right. Now your channel is auto. It is working on auto channel. I will explain you everything in the configurations part. Right now we are just checking out the status. Okay, mode automatic 802.11 BGN mode. It is means it is a indoor access point. Okay, channel width automatically. MAC address, which is your WAN interface side, wireless interface side, is this one. Now this is your WAN interface. This is WAN side MAC address. Okay, it is refreshing every 2 seconds. Okay, now a part of this you have a WAN IP address. This is my subnet mask default gateway. Okay, DNS servers IP address which is coming from my ISP. ये मेरे जिसके मैंने internet connection लिया है उसके तरफ से connected है. I can just click here on disconnect and my internet will get disconnected. Okay, this is my current utilization traffic statistics. क्या चल रहा है अभी, current utilization क्या चल रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पर. Okay, I can refresh this as well. Since how many days it is not restarted.
Okay, or hours it is not. This is, so this is on my power on. the लाइट गया तो वो रिस्टार्ट हो जाता है, इसलिए 0 day 21 hours से चल रहा है, मतलब 21 hour बिफोर लाइट गया था. Okay, so this is just a status. Now let us go to the first screen. ये basic settings है. Quick configuration. When you buy a new access point, you can go with the quick configurations, go to the next, और यहाँ पर दो options है आपके पास. Okay, wireless router and wireless client router. Okay. अच्छा, अभी आप नया कोई राउटर परचेस करेंगे तो उसमें आपको थर्ड ऑप्शन भी दिखेगा, दैट इज योर रिपीटर. तो वो एज ए एक्सटेंडर, एज अ रिपीटर का काम करेगा. ऑलराइट, इट विल वर्क एज ए एक्सटेंडर, एज अ रिपीटर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट. उसका पर्पस क्या होता है एज अ रिपीटर? इफ आई से देन व्हाट इट मीन. अज्यूम दैट ये आपका इंटरनेट है और ये आपका वाईफाई राउटर है, कनेक्टेड है. इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है आपके नेटवर्क के अंदर. ओके, इस रेंज को सेल कहते हैं, सेल. ओके, लेकिन आपके घर में आपके किसी दूसरे फ्लोर पर रेंज नहीं जा रही है. ओके, यहाँ पर आपका डिवाइस है और उसको रेंज ही नहीं मिल रही है ना, क्योंकि उसकी रेंज तो यहाँ तक ही है, मे बी 10 मीटर्स, 20 मीटर्स. तो आप क्या कर सकते हो, इस वायरलेस से एक एक्सेस पॉइंट लेकर आपके दूसरे फ्लोर पर ये लगा दो. तो ये क्या करेगा, सारा कॉन्फ़िगरेशन यहां से लेगा, ये सिर्फ एक्सटेंडर का काम करेगा. एक्सटेंडर, तो ये इसकी रेंज को और ऐसे बढ़ा देगा, तो इसकी रेंज अब यहाँ तक आ गई. ओके, और अब ये कनेक्ट करने लगेगा, तो ये डिवाइस आईपी एड्रेस सब कुछ, इंटरनेट सब कुछ यहाँ से लेगा, ये सिर्फ उसको एज अ रिपीटर का काम कर रहा है, सिग्नल को एक्सटेंड करने का काम कर रहा है. तो ये तीसरा ऑप्शन भी होता है डिवाइसेस नए फायरवॉल्स के अंदर, विच इज रिपीटर. ओके, सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन. सो आप क्या फंक्शन कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, जो भी फंक्शन चाहिए आपको, यू नीड टू इनेबल दैट, यू नीड टू कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंग टू. सो ये वायरलेस राउटर हमने कॉन्फ़िगर किया है, वायरलेस ब्रॉडबैंड राउटर्स. तो इस यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जो पूरा रीड करता है उसको सब कुछ वेरी क्लियर हो जाएगा. ओके, वायरलेस राउटर इन दिस मोड the device enable multi-user to share internet via DSL or cable modem. Okay, wireless ports share the same IP to ISP through the Ethernet WAN port, and wireless port act as the same LAN port. Okay, while in AP routers, wireless client router, that means in this mode the device enable multi-users to share internet from WISP, WAN ISP, wireless ISP. Okay, now this LAN port device share the same IP address with this wireless port. While connecting to these ISP, wireless port work as a WAN port in AP client router mode. So ये आप कब चूज करोगे, जब आपके पास जो कनेक्टिविटी है वो फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, वो कनेक्टिविटी आपके पास जो है वो वायरलेस कनेक्टिविटी है. मेरे इस राउटर में सिम का प्रोविजन है, तो मैं उसमें सिम कार्ड लगाकर डायरेक्टली एयरटेल से कनेक्ट कर देता हूँ, एयरटेल का इंटरनेट या जो कुछ भी है उससे कनेक्ट कर सकता हूँ. सो वो वाला आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो देन यू विल गो टू दी सेकेंड ऑप्शन. समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को आपके घर पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन बाय ए जियो सिम कार्ड एंड you can put into that router, and that this router will take internet from that and it will serve back to you. So like that. So then you will choose this option. Now I'm not going to configure this because इसी पर मेरा internet चल रहा है. If I do modify anything, my internet will get disconnected, so I will just skip this. Okay, now I'm going to WPS. So this WPS, that means Wi-Fi protected setup. All right, so this is my SSID. ये SSID है. WPS status क्या है इसका, enabled है.
ये उसका करंट पिन है। आप पिन से भी इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट में अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, मैन्युअली मुझे कोई डिवाइस ऐड करना है, आई कैन डू फ्रॉम हियर। ओके, दिस इज, but we do not prefer a pin option to join device to the network. This is unsecure. All right, now operation mode, again the same mode जो quick setup mode में मैंने दिखाया था, wireless router, wireless client router. Okay, so this is now network setting. अब नेटवर्क सेटिंग के अंदर आपके पास ये तीन ऑप्शंस है। पहला लैन, लैन सेटिंग्स। सो ये मेरा लोकल लैन आईपी एड्रेस जिससे हम एक्सेस कर रहे हैं इसको, राइट, वो ये आपका लैन का आईपी एड्रेस। लेट अस अंडरस्टैंड, ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, इसमें ये पोर्ट्स हैं, तो ये आपका लैन पोर्ट हुआ जिससे मेरा ये वायरलेस इंटरफेस है, जिससे मेरे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये सर्वर्स एंड ऑल थ्रू वायरलेस। ओके, और ये वैन पोर्ट है जिसपे जो आईएसपी से जो ब्रॉडबैंड आ रहा है वो इस पे कनेक्टेड है। सो दिस इज माय वैन पोर्ट जिसपे इंटरनेट कनेक्टेड है ना। तो ये ऐसी फिजिकल कनेक्टिविटी है, और फिर वायरलेस से ये डिवाइसेस कनेक्टेड है। Perfect. So this is right now, this is my LAN port. So LAN port पर आपको कोई IP एड्रेस चेंज करना है, बदलना है, यहाँ से आप बदल दो, फिर आपका डिवाइस उस IP एड्रेस से एक्सेस होने लगेगा। Go to the WAN port. ओके, अब वैन पोर्ट पर जो आईपी एड्रेस मुझे मिल रहा है, जो स्टेटस में आपने देख रहा है, वो फिक्स आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर आपको जो आईपी एड्रेस मिलता है वो आपके ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर से या इंटरनेट प्रोवाइडर से मिलता है, विच इज रैंडम, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कुड बी एनीथिंग। सो ये वैन कनेक्शन टाइप क्या है? पीपीपीओई। ओके, पॉइंट टू पॉइंट, ओके, over ethernet. Okay, so this is your point to point protocol over ethernet. So ethernet पर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल रहा है। ये you have a multiple options here through DHCP, through static IP address. यदि ISP से आपको पब्लिक IP एड्रेस मिली है तो मैं स्टैटिक चूज करूंगा। ये डायल अप के थ्रू मिला है तो ये ऑप्शंस है। L2TP और ये सब ओल्ड टेक्नोलॉजीज है, बहुत ओल्ड लो लेवल की इंटरनेट कनेक्टिविटी पर काम करते हैं। वायरलेस में किसी टावर से, मैंने जियो का कनेक्शन लिया है और वो बोलता है कि मेरे इस टावर से आप कनेक्ट कर लो, so I can choose this one. So this is a dial up. This is my username and password जो ISP ने दिया है, username and password है। सेकेंडरी कनेक्शन डिसेबल, मेरे पास कोई इसी सेम राउटर में दूसरा ISP टर्मिनेटेड नहीं है। ओके, सो दैट इज डिसेबल, और you can put it डायनामिक है, स्टैटिक है। वैन कनेक्शन मोड क्या है? कनेक्ट ऑन डिमांड। ओके, मैक्सिमम आइडल टाइम 30 मिनट्स, ये मैंने देकर रखा है। मतलब 30 मिनट तक यदि इससे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होता है, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है 30 मिनट तक, तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से। फिर से कोई कनेक्ट होगा डिवाइस तो तुरंत वो वापस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट ऑटोमेटिकली, ओके, मतलब ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा। ओके, कनेक्ट मैनुअली ये कर दूं मैं तो क्या होगा, या मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सेस पॉइंट इस पीरियड से इस पीरियड तक ही कनेक्टेड रहे, बाकी डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो मैं सेट कर सकता हूँ, स्पेशली ऑफिस यूज वगैरह के लिए। कनेक्ट मैन्युअली मैं इस पर क्लिक कर दूं तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस राउटर पर मैं, मुझे इंटरनेट हमेशा ऐसे एक्सेस करके कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इंटरनेट चालू होगा, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया बंद होगा। ओके, तो ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट हर हर बार हर मोमेंट पे मैन्युअली करना पड़ेगा, यदि कनेक्ट मैन्युअली पे क्लिक कर दिया तो। सो मैंने ऑटोमेटिकली रखा है, तो ये जैसे ही मैंने बटन ऑन किया चालू हो गया, इंटरनेट कनेक्ट हो गया ऐसा। मैक क्लोन, ओके, ये मेरे वायरलेस का मैक एड्रेस है, फैक्ट्री मैक एड्रेस है। यदि आप
ये डायरेक्ट मैक किसी एप्लीकेशन में इसका मैक एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आप इसको क्लोन भी कर सकते हो, मतलब उसका कॉपी भी कर सकते हो। यू कैन क्लोन द मैक एड्रेस एंड रीयूज दिस। ओके, सो ये यूज करते हैं। कई बार आपके आईएसपीज आपके फिजिकल मैक एड्रेस को रजिस्टर करते हैं उनके राउटर पर, और उसी मैक एड्रेस पर इंटरनेट आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये मैक एड्रेस आपको क्लोनिंग करके बाइंड करना होता है। ठीक है, सो अभी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। गो टू दी वायरलेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये सारी चीजें हैं। ओके, अब देखो ये SSIDs, तो ये मेरा एक वायरलेस है जिसमें मेरे पास 4 SSIDs हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, माई वायरलेस एक्सेस पॉइंट विल अपीयर बाय 4 डिफरेंट नेम्स। ये 4 मैंने इसको इनेबल कर दिया, लेट्स से सेव कर दिया, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक ही है। अब देखो, द चेंजेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस विल टेक इफेक्ट व्हेन आई रिस्टार्ट द राउटर। मैं रिस्टार्ट करूंगा तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यदि मैंने ये इनेबल कर दिया, अब मैं रिस्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरा वायरलेस 2 नाम से दिखेगा, से एक ही वायरलेस, स्काईनेट भी दिखेगा, NITS ग्लोबल भी दिखेगा, मैं और ऐसे इसको मैं 4 नाम दे सकता हूँ। 4 SSID, दैट मीन्स 4 नेम। और चारों SSIDs को मैं अलग अलग पासवर्ड असाइन कर सकता हूँ, अलग अलग सेटिंग्स असाइन कर सकता हूँ, अलग अलग बैंडविड्थ असाइन कर सकता हूँ। जैसे मेरे ऑफिस में एक ही एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, आप समझिए किसी आईटी कंपनी में, लेकिन मैं उसको 4 SSIDs नाम दे दिया, तो किसी को भी लगेगा कि 4 एक्सेस पॉइंट है, बट बैकएंड में इट कुड बी ओनली 1। और सारी SSIDs को अलग अलग प्रिविलेज और अलग अलग पासवर्ड मैंने दे दिया, राइट? So that I can do, that is very well can be done. So this my access point is supporting 4 different SSIDs, so I can give 4 SSIDs, रीजन इन ऑल। आप देख सकते हो ये चैनल्स हैं, ऑटो मोड में है अभी, मल्टीपल चैनल्स। ये आपको टच मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑटो मोड पर है। ओके, अब यदि मैं इसको चेंज करके सपोज चैनल 4 कर दूं, और आपके लैपटॉप का वायरलेस अडाप्टर चैनल 4 सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कनेक्टेड ही नहीं होगा। पासवर्ड सही है, सब कुछ सही है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो चैनल मिसमैच है। तो इसलिए एक्सेस पॉइंट के एंड पर हमेशा चैनल वेट और चैनल मोड ऑटो रखते हैं। तो आपका जो लैपटॉप है, किसी का लैपटॉप कोई चैनल सपोर्ट करता है, किसी का कोई चैनल नंबर सपोर्ट करता है, तो ये ऑटो में जो रिक्वेस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ये सपोर्ट कर देगा। यदि वायरलेस एक्सेस पॉइंट के तरफ आप स्पेसिफिक डिफाइन कर देंगे, तो कनेक्टिंग डिवाइस भी स्पेसिफिक होना चाहिए। यदि वो मिसमैच हुआ तो कनेक्ट ही नहीं होगा। दिस इज ऑलराइट। इनेबल वायरलेस राउटर रेडियो, यदि मैं इसको अनचेक कर दूं तो वायरलेस बंद हो गया। फिर ये इसका वायरलेस का रेडियो बंद हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल बी जस्ट लाइक ए नॉर्मल हब और स्विच, वायर्ड हब और स्विच। इनेबल SSID ब्रॉडकास्ट, मैं चाहता हूं कि ये नाम किसी को डिस्प्ले ना हो, ऐसा नाम दिखे ही नहीं। जिसको फिजिकली नाम पता है वो टाइप करेगा और बस कनेक्ट हो जाएगा, तो दिखना नहीं चाहिए। तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो वो दिखेगा ही नहीं यहाँ पर, ये ऐसा विजिबल नहीं होगा। जब आप वायरलेस पे क्लिक करते हो तो आसपास के SSIDs दिखते हैं। इफ आई डू दिस इट विल नॉट विजिबल। ओके, लाइक दैट। ओके, okay, now you can do this enable WDB, WDS। ओके, सो WDS का काम क्या है, यदि आप एक ही राउटर पर यू वांट टू हैव ए राउटिंग प्लस ब्रिजिंग फंक्शंस, और यू वांट टू हैव, यदि आपके पास 2 ISP है और 2 ISPs के बीच में आप ब्रिजिंग करना चाहते हो, तो इस फीचर को ये करना चाहिए। ओके, तो यदि ये मैंने चूज कर दिया तो वायरलेस के कॉन्फ़िगरेशन में भी ब्रिजिंग इनेबल करना पड़ेगा। ओके, सो आई डोंट गो फॉर दिस। ओके, लेट इट बी, आई डू नॉट हैव टू डिफरेंट
ISPs, wireless ISPs to connect. Okay, this is now wireless security. ये SSID है, जितने भी SSID आप क्रिएट करोगे, देखो दो है तो दो यहाँ पे दिख रहा है, किस SSID के लिए क्या पासवर्ड देना है, क्या प्रोटोकॉल देना है। आप कुछ SSID आप बिना पासवर्ड के भी रख सकते हो, ओपन भी रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ओके, ये SSID है और ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। डिसेबल सिक्योरिटी दैट मीन्स ओपनली अवेलेबल। ओके, WEP सिक्योरिटी, इसको मैं क्लिक करके पासवर्ड यहाँ पर दे सकता हूँ। WPA वर्जन 2 सिक्योरिटी में दे सकता हूँ, यहाँ पर दे सकता हूँ। आई एम यूजिंग दिस स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी, WPA PSK सिक्योरिटी। Okay, this is the latest one and more secure. So pre-share keys. Okay, PSK is your pre-share keys between the devices. This is my wireless password encryption method. कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक है। Okay, and group की update period is this. तो एक बार ये पासवर्ड इतनी देर के बाद चेक हो, फिर से चेक करेगा ये। ओके, सो नाउ यदि ये पासवर्ड तो किसी कोई भी देख सकता है। ओके, आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है, उसकी भी प्रॉपर्टी में जाकर कोई पासवर्ड देख सकता है कि क्या पासवर्ड है। Where is that? ओके, ये वायरलेस प्रॉपर्टी में आप आ जाओ, सिक्योरिटी, कोई भी यहाँ से देख सकता है कि क्या पासवर्ड है ना। सो इट डज नॉट मीन जिसको इंटरनेट एक्सेस है उसके यहाँ पे चला गया, पासवर्ड देख लिया। सो इस तरह से पासवर्ड लीक हो जाएगा आपका। So instead of this, I have given a password. Also, I can do wireless MAC filtering. Okay, तो ये मेरा मैक फिल्टरिंग है, ये मेरे घर के डिवाइसेस हैं, इतने सारे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर मेरे सारे डिवाइसेस जो जो मुझे कनेक्ट करने होते हैं वो सारे इसमें मैंने उसके मैक एड्रेस मैन्युअली ऐड करके रखे हैं। ओके, कोई नया डिवाइस मुझे अलाउ करना है, मुझे टीवी, मेरा इंटरनेट टीवी है, उसको ऐड करना है, जो भी डिवाइस, जो जितने भी मोबाइल फोन्स वगैरह सब मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। नया कोई डिवाइस मुझे ऐड करना है तो मैं उसका मैक एड्रेस डाल दूंगा, उसका नाम डाल दूंगा, इनेबल डाल दूंगा। ओके, और सेव कर दूंगा। तो देखिए, इसमें किसी को यदि मेरे वाईफाई का पासवर्ड भी पता है तब भी वो कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक मैं उसका मैक एड्रेस मैन्युअली ऐड ना करूं। Until I don't add a MAC address manually, it will not work. It will not work. क्योंकि मैंने क्या दिया है, deny the stations not specified by enable entries. उन सारे डिवाइसेस को डिनाई कर दो जो इस लिस्ट में नहीं है। Okay, so if somebody knows password, still cannot connect to my Wi-Fi until I don't add MAC address manually. That is the one. परफेक्ट। सो ये मैक बेस्ड फिल्टरिंग आपको इनेबल कर लेना चाहिए हमेशा। वायरलेस एडवांस, ये आपके बैंड और रेड थ्रेशोल्ड वगैरह हैं, इसको कभी चेंज मत करो, वो मिसमैच हुआ तो फिर वर्क नहीं करेगा। वायरलेस स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर आपको दिखता है कि कितने डिवाइसेस अभी कनेक्टेड है, ये उनके मैक एड्रेस, ये रिफ्रेश होता होता रहता है ये, and it will tell you how many devices are connected and
कौन कितना सेंड कर रहा है, कितना रिसीव कर रहा है। ओके, सबसे ज्यादा this device is receiving. Okay, so this is A065 is my MAC address. I can go and check it here. Okay, so this is my laptop. Now I can check it out. ये send packet सबसे ज़्यादा ये कर रहा है कौन है, ये A797. So I can go and check here. Okay, so this is my phone. So ये फ़ोन भी उतना बहुत ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करता है, because your so many things are connected to that, and it consume a lot. Okay, आपके डिवाइस से ज़्यादा, मतलब आपके लैपटॉप से ज़्यादा मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन कंज्यूमिंग दी बैंडविड्थ। मोबाइल फोन से ज़्यादा ये बैंडविड्थ कंज्यूम करते हैं। सो आई हैव डिसेबल्ड माय वाईफाई हियर। अब देखो चला गया वो, यहाँ से रिफ्रेश में चला गया। सो माय इंटरनेट वुड बी मोर बेटर नाउ। ओके, सो दिस इज, तो ये स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो आप, ये सब देख सकते हो। Okay, now come back to the next here on DHCP. Okay, अब देखो यहाँ पर ये DHCP की रेंज आपने इनेबल कर दी है। मैंने रेंज दे दी है 10.100 से लेके 10.99 तक। सो जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा मैं, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उनको इसी रेंज से आईपी एड्रेस मिलेगा। Okay, let's see what IP address I got. I will definitely get from this range only. So let's go here. ओके, ये मेरा वायरलेस है। इफ आई गो एंड चेक डिटेल, लुक एट दिस, 10.105 मिला, उसी रेंज का आईपी एड्रेस मिला है। रेस्ट ऑफ ऑल अदर डिटेल्स हियर। ओके, सो 1 2 3 4 ऑलरेडी किसी और डिवाइसेस को मिल चुका होगा जो उसके इस लैपटॉप के पहले कनेक्ट हुए हैं, लाइक दैट। सो दिस इज, आप यहाँ से रेंज डिफाइन कर सकते हो कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में ही आपको ये चलना चाहिए। आपने डिसाइड किया है कि आपके यहाँ बहुत तरह से आप ग्रेनुअली सिक्योर कर सकते हो। आपको पता है कि आपके घर में 4 ही डिवाइसेस हैं, तो 4 ही आईपी एड्रेस इसमें रखो। ओके, और उनके मैक एड्रेस भी मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दो। तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और सब कुछ मैन्युअली बाइंडेड है, बस कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। DHCP क्लाइंट्स लिस्ट, ये DHCP के क्लाइंट्स हैं और कौन कौन से डिवाइस को क्या क्या आईपी एड्रेस मिला है ये यहाँ पर है। Which all devices got the IP address, ये। Okay, perfect. नाउ एड्रेस रिजर्वेशन, मैं किसी डिवाइस के लिए मैन्युअली एड्रेस को रिजर्व भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैक एड्रेस डाल दिया और उसका आईपी एड्रेस डाल दूं मैं यहाँ पर, तो उस मैक को वही आईपी एड्रेस मिलेगा हमेशा। फॉर एग्जांपल, आपके लैपटॉप या आपके डिवाइस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैक बेस है कि आप चाहते हो कि आपका आईपी एड्रेस चेंज ना हो। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैक बेस रिजर्वेशन लगा दो, तो उस कंप्यूटर को हमेशा वही आईपी एड्रेस मिलता रहेगा। ओके, आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस कभी
चेंज नहीं होगा. सो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट. Perfect. So that is very well can be configured. Perfect. Now forwarding. This is very important. ये business perspective और core technical perspective settings है. Forwarding का concept क्या है? Let's understand. Okay. Look at this virtual server forwarding. So here you have certain ports, virtual server, port, trigger, and so many things. So let's first understand what is a virtual server forwarding. Okay. अब देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ और I can define a port number here, IP address, protocol, status enable and common service port ये define कर देंगे. अब पहले इसका context समझो. Okay. इसका context समझो क्या है. This is your wireless access point. This is internet. Okay. और इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट से नीचे आपके पास कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है. लेट्स से ऑफिस में आपके पास ये आपका FTP सर्वर है. लेट्स से दिस इज योर फाइल सर्वर और वेब सर्वर. ओके, दिस इज समथिंग, लेट्स से योर AD सर्वर. ये अलग अलग सर्वर्स हैं. पब्लिक IP एड्रेस आपके पास एक ही है. लेट्स से 122.169.103.160 ये आपका पब्लिक IP एड्रेस है. अब आप घर से बैठकर आपके FTP को एक्सेस करना चाहते हैं. ओके. तो आप जब इस पब्लिक IP एड्रेस को एक्सेस करोगे तो इस पब्लिक IP एड्रेस को किसी एक प्राइवेट IP एड्रेस से मैप कर सकते हो, नेट कर सकते हो. ओके. लेट्स से 192.168.10.1, 10.2, 10.3 किसी एक से कर सकते हो. तो जो भी क्वेरी इस पर आप भेजोगे वो यहाँ पर चली जाएगी. बट मेरे पास एक ही पब्लिक IP एड्रेस है और मुझे मल्टीपल पोर्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज एक्सेस करनी है. तो क्या होगा, तो कैसे करें? सो लुक एट दिस इज अ सर्विस पोर्ट. तो मैं क्या करूंगा, इसको पोर्ट मैपिंग करके रख दूंगा. ओके. पोर्ट मैप कर दिया मैंने और यहाँ पर मैंने दे दिया लेट्स से 4444. ये मैंने कस्टम पोर्ट दे दी. अब 4444 यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया 4444. ओके. IP एड्रेस में डिफाइन कर दूंगा ये 192.168.10.1 कि कोई भी क्वेरी यदि मैं कॉलन 444 लगाकर भेजूं तो वो समझ जाएगा कि मुझे 10.1 पर जाना है. और कौन सा प्रोटोकॉल मुझे इनेबल करना है वहां पर, उसके लिए प्रोटोकॉल मैं चूज कर लूंगा. TCP पर आने वाला प्रोटोकॉल कौन सा, लेट्स से FTP. तो बराबर वो FTP पर चला जाएगा. सेव कर दूंगा. फिर दूसरी एंट्री मैंने कर दी, यहाँ पर दूसरी एंट्री मैंने लगा दी
लेट्स से 4445, 5 को मैंने दे दिया 2 से मैप कर दिया, और जो भी है ये वेब सर्वर है, तो मैंने प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर HTTP। यहाँ पर जैसे मैं पोर्ट चेंज करूंगा ये समझ जाएगा 45, दैट मीन्स 10.2 पर जाना है, तो वो 10.2 पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, इस पर वो क्वेरी इस पर आ जाएगी। तो इस तरह से मल्टीपल पोर्ट नंबर यूज करके बैकएंड में मैं अपना ट्रैफिक मल्टीपल डिफरेंट आईपी एड्रेसेस पर राउट कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ। दैट इज योर वर्चुअल सर्वर एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग। ओके, इसी को पोर्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं। तो इससे एक ही पब्लिक आईपी एड्रेसेस से आप मल्टीपल सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं, मल्टीपल सर्विसेज को होस्ट कर सकते हैं बाहर से। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस वन। यहाँ पर आप पोर्ट डिफाइन करिए, जो भी पोर्ट्स आपको देना है, आईपी एड्रेस डिफाइन करिए, और देन टीसीपी पोर्ट। तो दिस विल टेक योर क्वेरी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, नाउ पोर्ट टैगिंग, पोर्ट ट्रिगरिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, बट इसमें सिर्फ आप पोर्ट को, मतलब आप कोई पोर्ट मैंने आपको दे दिया, ट्रिगर पोर्ट 444 पर आने वाला ट्रैफिक जो है वो कहां पर चला जाए, पोर्ट नंबर 80 पर चला जाए, पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसलेशन, दिस इज ओके लाइक दैट। तो ये आप आपके कस्टम पोर्ट नंबर पर एप्लीकेशन को होस्ट करोगे, और उस पर आने वाला ट्रैफिक आप किसी और दूसरे पोर्ट पर बैकएंड में ट्रांसफर करवा दोगे। दिस इज योर पोर्ट ट्रिगरिंग। डीमिलिटराइज्ड जोन मतलब आपका, आपके नेटवर्क में आप एक ऐसा जोन बनाना चाहते हो जहां से आप वेबसाइट वगैरह पब्लिश करोगे, उसको डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। तो वो यदि कोई है तो इनेबल करके उसका आईपी एड्रेस वगैरह डिफाइन कर सकते हो। ये होम सेगमेंट और स्मॉल लेवल के नेटवर्क पर नहीं करते हैं हम, इंटरप्राइज नेटवर्क पर करते हैं। यदि आपके इंटरनल ऑफिस से यदि आपकी कोई वेबसाइट वगैरह पब्लिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो फिर आप डीमिलिटराइज जोन यूज करेंगे। Perfect. This is your universal plug and play network. All right, so universal plug and play features आप यहाँ पे define कर सकते हो। ओके, तो आप किसी कंप्यूटर्स को बाहर से अलाउ करना चाहते हो जो प्लग एंड प्ले वर्क करें, मतलब डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज दी और आ जाए, और उसके लिए आपको पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए जस्ट काइंड ऑफ वीपीएन, शॉर्ट ऑफ सिंपल वीपीएन, दिस इज प्लग एंड प्ले। ओके, तो इनेबल्ड है, इसलिए सारे डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। सिक्योरिटी, ये इनबिल्ट सिक्योरिटी एज काइंड ऑफ फायरवॉलिंग फीचर इन योर फायरवॉल। L2TP पास थ्रो, L2TP पास थ्रो इज इनेबल, ये सारे पासवर्ड प्रोटेक्शंस के प्रोटोकॉल्स है, इनेबल है सारे। कीप दोज इनेबल फॉर सिक्योरिटी। एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पर है। ये फ्लड, ICMP फ्लड अटैक थ्रेशोल्ड, कितने पैकेट पर सेकेंड रिसीव करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ये सब सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पर है। ओके, UDP फ्लड फिल्टरिंग इनेबल, TCP सिंक फ्लड, कोई TCP सिंक फ्लडिंग भेज रहा है, इट कैन पिंग पैकेट फ्रॉम वैन पोर्ट, इग्नोर, मतलब बाहर से कोई पिंग करेगा तो पिंग ही नहीं देगा ये, कोई पिंग, डेथ ऑफ पिंग नहीं भेज सके। ओके, ब्लॉक्ड, ओके, डॉस, डिनायल ऑफ सर्विसेज होस्ट लिस्ट। तो ये है लोकल मैनेजमेंट। क्या है, ऑल द पीसी ऑन द लैन। मैं किससे, ये मैंने एक्सेस ले लिया तो ये किससे ले सकता हूँ, किसी भी पीसी से। यदि मैं ओनली सेलेक्ट करके मैक एड्रेस डिफाइन कर दूं तो उसी मैक एड्रेस से ये एडमिन कंसोल आएगा, बाकी और किसी लिंक से, किसी आईपी एड्रेस से नहीं आएगा। सो आई कैन हैव दैट रिस्ट्रिक्शन कि ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट एडमिन कंसोल कौन कौन ले सके, सो दैट आई कैन ग्रेजुअली फिक्स इट अप। कोई भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएगा। मैक एड्रेस डिफाइन कर दिया, उसको वायरलेस एक्सेस पॉइंट का यूजर नेम पासवर्ड पता है तब भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने मैक, उसी मैक, जो मैक एड्रेस अलाउ करूंगा सिर्फ वही मैक एड्रेस उसको एक्सेस कर पाएगा।
ओके। रिमोट मैनेजमेंट, बाहर से इंटरनेट से किस आईपी एड्रेस से आप इसको इसका मैनेजमेंट देना चाहते हो, मतलब आपका एक्सेस पॉइंट ऑफिस में रखा है, आप घर से उसको मैनेज करना चाहते हो, किसी को एक्सेस देना चाहते हो, तो आपको आपका पब्लिक आईपी एड्रेस वहां पर डाल दो और पोर्ट नंबर डाल दो, तो आप बाहर से भी उसको उस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। ऑलराइट। Okay, now parental control. Here you have a parental control. Okay, non-parental PCs not listed will not be able to access the internet. तो यहाँ पर आप पीसी ऐड कर दो जो पेरेंटल कंट्रोल के हैं, उसका मैक एड्रेस ऐड कर दो, तो वही इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, और दूसरा पीसी सिर्फ लैन नेटवर्क एक्सेस करेगा बट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। So you can have a parental control for this. Access restriction, this is important. अब यहाँ पर देखो, आप एक्सेस रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। मैंने इन कुछ डिवाइसेस को एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, जैसे क्या एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस है, यू कैन चेक इट आउट। दिस इज अ मैक एड्रेस, दिस इज ओके। ये मैंने ऑनलाइन क्लास टाइम लगा दिया, तो मेरे क्लास टाइमिंग का ये ऑनलाइन क्लास टाइमिंग लगा दिया है। यहाँ पर जाकर आप शेड्यूल चेक कर सकते हो, ये ऑनलाइन क्लास टाइमिंग का शेड्यूल मैंने यहाँ पर बनाया है। देखो ऑनलाइन क्लास टाइम 6 से 11 बजे तक मैंने इंटरनेट बंद कर दिया है, सो दैट nobody can do streaming, YouTube streaming or anything, so that my internet should get affected. तो इसी तरह से पेरेंटल कंट्रोल के लिए आप रूल बना सकते हो। ओके ओके, जैसे आपने बच्चों को आपको लिमिटेड टाइम तक इंटरनेट देना है, तो यहाँ पर आप बना दो, रूल बना दो। ओके, ऐड न्यू। ओके, लेट्स से अलाउड रूल। ये अलाउड रूल बना दिया आपने एवरी डे, और टाइम आप यहाँ पर ऑल डे नहीं, टाइम डिफाइन कर दिया आपने, लेट्स से 12 बजे से लेकर, या मैंने दे दिया 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 बजे तक ही इंटरनेट देना है। तो ये एवरी डे ये पीरियड दे दिया मैंने, ठीक है। एंडिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन, ओके, ये 24/7 वाली क्लॉक में देना है। तो 11 बजे से लेके मैंने 1 बजे तक देना है मुझे, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, 13 देना पड़ेगा। ओके, ये सेव कर दिया, 11 से 1 के बीच में देना है। अब रूल बनाऊंगा मैं उसके लिए, होस्ट भी ऐड कर सकता हूँ, टारगेट भी ऐड कर सकता हूँ, किस किस को करना है। अब मैंने रूल बना दिया। ओके, न्यू रूल, यहाँ पर मैंने रूल नेम दे दिया test1। ओके, होस्ट किसको मुझे रिस्ट्रिक्शन देना है, इस कंप्यूटर को। टारगेट क्या देना है, एनी टारगेट। टारगेट मतलब कौन सी वेबसाइट रिस्ट्रिक्शन करनी है वो भी आप दे सकते हो। शेड्यूल क्या बनाया आपने, अलाउ रूल बना दिया, इनेबल कर दिया। तो क्या होगा कि इस कंप्यूटर को इंटरनेट सिर्फ 11 से 2 के बीच में ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मैं रूल बना सकता हूँ, है ना, और सेव कर दूंगा, हो जाएगा बैक। ओके, यहाँ पर देखो टारगेट में आप वेबसाइट की लिस्ट भी डाल सकते हो, आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, या डोमेन्स डाल दिए, और ये टारगेट और डोमेन नेम डाल दिया। डिस्क्रिप्शन यूट्यूब यहाँ पे डाल दिया।
youtube.com सेव, तो बस यूट्यूब नहीं चलेगा। ओके, ऐसे में पूरी लिस्ट बना दूंगा डोमेन्स की और उसको ब्लॉक कर दूंगा। Like that I can create. So this is an access restriction. Okay, now after that you have a static route here. स्टैटिक राउटिंग डाल सकते हो, बट वो तब आपको डालना है जब आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस वगैरह है। अभी डायनेमिक आपके पास जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो आईएसपी का आ रहा है, आपके पास फिक्स गेटवे नहीं है। ओके, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, तो फिक्स गेटवे नहीं है और आपने स्टैटिक रूट डाल दिया, तो टुमारो व्हेन योर एक्सेस पॉइंट गेट सम डिफरेंट आईपी एड्रेस तो वो काम नहीं करेगा फिर। ओके, आपका रूट रॉन्ग हो जाएगा। सो वहां पर आपको जरूरत नहीं है। जहां पर आपके पास फिक्स्ड आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, देन यू कैन डिफाइन ए स्टैटिक रूट्स वगैरह। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपको करना है ऑफिसेस में, तो आपको तब उसकी जरूरत पड़ती है। ओके, बैंडविड्थ कंट्रोल, यू कैन डू ए बैंडविड्थ कंट्रोल एज वेल। आप चाहते हो कि कोई यूज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, उसको मुझे बिल्कुल कम इंटरनेट एक्सेस देना है, उसका आईपी एड्रेस डिफाइन यहाँ पर अभी है नहीं। इनेबल दिस इज योर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मैं इनेबल क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कर दूंगा। उसका आईपी एड्रेस रेंज भी डाल सकता हूँ, एक आईपी एड्रेस भी डाल सकता हूँ, और उसको मिनिमम बैंडविड्थ गारंटी या मैक्सिमम बैंडविड्थ दे दिया। मैक्सिमम बैंडविड्थ दे दिया मैंने 512, तो 512 के ऊपर वो जा ही नहीं पाएगा। He will not be able to access more than 512. So I can define this way. बस आप किसी को बैंडविड्थ की रिस्ट्रिक्शन दे दो, लिमिटेशन दे दो, उससे ज़्यादा वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। Perfect. So this is only the QoS, quality of services. Now IP and MAC बाइंडिंग, ये मैनुअल बाइंडिंग है। किसी आईपी एड्रेस के साथ आप मैक एड्रेस बाइंड कर सकते हो। इट विल हैव द सेम आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस ओनली। ARP बाइंडिंग है, तो सपोज ARP स्पूफिंग में भी सिक्योरिटी में आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी उसकी। ओके, ARP लिस्ट देखो, ये कौन कौन से मैक एड्रेसेस को क्या क्या आईपी एड्रेसेस हैं। आपका ARP टेबल विच इज रेंडमली ऑटोमेटिक, आप उसको मैनुअली भी बाइंड कर सकते हो ARP टेबल में। डायनेमिक DNS है, तो ये आपके प्राइवेट नेटवर्क में आपका प्राइवेट DNS है तभी इसका यूज है, अदरवाइज नहीं। DNS आपका ही पब्लिक DNS लेना चाहिए ऑटोमेटिकली, जो आपके ISP से आ रहा है वो। आप एक फिक्स DNS डिफाइन कर देंगे तो वही उसी को ढूंढेगा। मेंटेनेंस, ओके, अब इसमें आपका ये जो फायरवॉल का टाइमिंग है वो आप डेट एंड टाइम डिफाइन कर सकते हो। ओके, लॉग्स वगैरह चेक करने के लिए। डायग्नोस्टिक टूल्स है आपके पास, पिंग विंग आपको चेक करना है तो यहाँ से आप पिंग कर सकते हो। लेट्स से google.com को मैं पिंग करके देखना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाएगा, देखो पिंग हो रहा है।
आप नॉर्मल आपके कंप्यूटर से पिंग करते हो, सिमिलर वे यू कैन जस्ट डू एंड टेस्ट इट. ओके, ट्रेस रूट भी कर सकते हो. फर्मवेयर अपग्रेड, यहाँ से आपको अपग्रेड करना है तो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होकर वो अपग्रेड हो जाएगा. फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग, आपको रिस्टोर करना है डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे, तो आप कर सकते हो यहाँ से. बैकअप एंड रिस्टोर, आपको बैकअप लेना है, जस्ट क्लिक ऑन बैकअप, इसका बैकअप फाइल आपके लोकल कंप्यूटर में सेव हो जाएगा. रिस्टोर करने के लिए चूज फाइल एंड रिस्टोर. ओके, रिस्टार्ट, आप रिस्टार्ट कर सकते हो. पासवर्ड चेंज, जो आपका एडमिन पासवर्ड है वो बदल सकते हो. सिस्टम लॉग्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी लॉग्स हैं, जो कुछ भी आपने चेंज किया है, कोई कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, कोई अटैक आया है, that logs, if it is enabled you can check it there. All right, and statistics again. तो इसमें कुछ नहीं है अभी. करंट स्टैटिस्टिक्स स्टेटस डिसेबल है, इसको आप इनेबल करोगे तो फिर ये दिखाएगा द स्टैटिक्स शो द नेटवर्क ट्रैफिक फॉर ईच पीसी एंड लैन इंक्लूडिंग टोटल ट्रैफिक एंड वैल्यू ऑफ द लास्ट पैकेट. स्टैटिक्स इंटरवल आप सेंड कर सकते हो, तो ये आईपी, मैक एड्रेस, पैकेट, बाइक, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो. बट वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह मैं इनेबल कर दूँ तो मेरे वाईफाई का वापस से प्रोसेस बढ़ जाएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, इसलिए अनवांटेड थिंग्स आई डोंट कीप. ऑलराइट, तो ये था सारा. अब कुछ फीचर्स और कुछ फंक्शंस अलग अलग वायरलेस पर वेरी होते हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. एनी क्वेरीज? Most of the people must have a wireless access point at their home. They can log in into it and check out all the settings there. Okay. All right, so tomorrow we are starting security topic. Fine, so do practice and let me know if any queries, any issues. Sir, today adding the checkpoint session, sir. Yeah, at same time, 9 o'clock it started. Okay, sir. Okay, Sir, everybody yesterday, who is there in the class, जो लोग भी क्लास में हैं वो on time रहेंगे. Okay, I will share you the link on WhatsApp, and then today we will create an batch application batch similar like that in your mobile app, and then you will get through the mobile apps only.
Excuse me, sir. Hello. Yes. Sir, what's the name of that software for checkpoint?